Hello students, welcome to TeacherTube online science classes. Today we are going to discuss the periodic classification of elements, and in this chapter we will discuss today about the trends in modern periodic table only. So we have a separate video for all this chapter. But in this video we will discuss about the trends only, because I have lots of query about this. Lots of students were asking that, sir, we are confused in the trends in modern periodic table. So this video is for all those who wants to improve their doubts in the trends in modern periodic table. So here in this video we will discuss about some trends. The first trend is atomic size of the elements in periods and in the groups. The second trend we will discuss about the valence electron and valency, that is called electronegativity or electron positivity. Then we will discuss the metallic property and non-metallic properties. So these 5 trends we are going to discuss in this video. If you want to improve yourself in these trends, then please watch this video till the end. So coming to us the trends, first you must keep the diagram of the periodic table in your mind. Have a good practice and don't go for all the elements. You are limited elements are given to you. From 1 to 20 elements only there are. So if you are learning about these 18 to 20 elements, that will be sufficient for you. The trends which are to be discussed. So before the trends we discuss, you just keep in mind the first period, first group to 18 group, there are total 18 groups, and first to 7 group there are 7 periods. Okay, the horizontal lines are the periods and the vertical lines are the groups. Now, the first group contains the hydrogen and the 18th group contains the helium. Then just down the hydrogen there is lithium. This map must be there in your mind. Just below the hydrogen there is the lithium, then the second element is there, that is beryllium. Then coming to that right side, it is boron, then carbon, followed by nitrogen, oxygen, fluorine and neon. So neon is there in the 18th group, and this 18th group is called as noble family. Okay, non-active gases all are kept together in this 18th group. Then coming down to the lithium, there is sodium. Then after magnesium, followed by aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and last में argon. तो ये जो मैप है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट रो मीन्स द फर्स्ट पीरियड, सेकंड रो लेफ्ट टू राइट दैट इज द सेकंड पीरियड, एंड थर्ड रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट इज द थर्ड पीरियड. Coming to the groups, the first group to 18th group, just keep in mind. Okay, now coming to the first trend, that is atomic size. So please be very frank, very easily we can understand the atomic size trend, how it is varying from left to right and from up to down. So periodic table, modern periodic table is based on the atomic number of elements. So when we are moving from left to right, the atomic number is also increasing. So with the atomic number that is increasing, we are very easily saying that the number of proton and number of electron also increasing. So if number of protons are increasing, the holding capacity, or we can say the power of attraction of element, or power of attraction of that proton is getting increased.
So if power of proton is increasing, means they will hold or they will attract the electrons more powerfully. That is why the size of atom will be shrinked. Okay? So with the number of protons are increasing, the size of electron is getting reduced as the number of cells are same in the period. Keep in mind that the number of cells in a period are not getting increased. But if you are coming from up to down in a group, then number of cells are increasing. So number of cells if increasing means एक डिब्बा, उसमें दूसरा डिब्बा, दूसरे डिब्बे में तीसरा डिब्बा, अगर हम इस तरह से रखे जाएंगे तो the size of atom is getting increased. So from up to down अगर हम नीचे आते हैं तो atomic radius increase होती है and the resulting that atomic size is also getting increased. उसके बाद बात करें, यहां देखिए डायग्राम के थ्रू भी आप इनको समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा वहां पे दिख रहा है. हाइड्रोजन के नीचे आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और उसके नीचे रुबिडियम और सीजियम है. उनका साइज जो है इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है. देन कमिंग टू द लेफ्ट टू राइट साइड ऑल्सो यू कैन सी द साइज ऑफ एटम इज गेटिंग रिड्यूस्ड. यहां आप देख रहे हैं एटॉमिक साइज ऑफ एटम जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है. लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट में तो साइज जो है रिड्यूस हो रहा है. यहां पे देखिए ये एक जनरल ट्रेंड है. ठीक है. क्लास 11th-12th में यू मे सी सम एक्सेप्शंस बट हियर देयर इज नो एक्सेप्शन. सो atomic radius is decreasing in a period from left to right, but the atomic radius is increasing in a period group from up to down. इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई है, उस ट्रिक के साथ में इसको और अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं. एटॉमिक साइज में हम एटम का फर्स्ट लेटर लेते हैं ए. सो ए का जो लेटर है आप देख रहे हैं उसको नीचे से अगर हम देखते हैं दैट इज वाइड एंगल, और ऊपर से देखते हैं तो उसका साइज बहुत छोटा है. इट मीन्स व्हाट कि ग्रुप की जब हम बात करें तो ग्रुप में साइज ऊपर जो है कम रहेगा और नीचे जो है इंक्रीज हो रहा है तो वाइड एंगल है, इसलिए नीचे का साइज इज रहेगा. इवन दिस इज अ ट्रिक ओनली. ओके, आप इसको याद करने के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज करें, बाकी किसी तरह से ये आगे लिखने के लिए एग्जाम में लिखने का इसका कोई पर्पस नहीं है. ध्यान रखें एग्जाम में इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. आपको ट्रेंड लिखना है और ट्रेंड को याद रखने के लिए एक ट्रिक के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं. ओके, इसको ट्रिक कैसे बन रही है हमारी ए डी आई. ए डी आई 2 बार 5 बार इसको रिवाइज करें तो आपको समझ में आएगा, लर्न हो जाएगा. ए डी आई, ए डी आई मीन्स एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है. लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, अप टू डाउन इंक्रीज हो रहा है. और इस तरह से आपको ये जिंदगी में कभी भी भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा. इसके बाद बात करें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हमने पहले पढ़ा है. जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो शेल जो है वो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का शेल के, हीलियम का साइज भी के, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के शेल में आ जाते हैं. उसके बाद जब लिथियम की बात करते हैं तो नेक्स्ट शेल हमारे पास एल शेल आ जाता है, और एल शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट. तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से उसमें फिट कर सकते हैं. तो यहां से लेकर लिथियम से लेकर और नियोन तक 2 + 8 का कन्फिगरेशन के साथ में कोई शेल इंक्रीज करने की आवश्यकता नहीं होती है. इसलिए साइज जो है एटॉमिक साइज वो यहां पर इंक्रीज नहीं. और दूसरी बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां बढ़ते जाएंगे. जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, अगर डेफिनेशन देखें तो शेल का जो आउटर मोस्ट शेल, किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्लियर. तो अगर हम देखें इन ए पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग. फॉर एग्जांपल लिथियम के लिए 2 1, बेरिलियम 2 2, बोरॉन 2 3, ओके, कार्बन 2 4 एंड लाइक दिस. ओके, आगे तक ये इस तरह से
shell same है, no shell is increasing. But when we are changing the period from up to down in a group, then shell is increasing. So here the next cell, that is M, will also be added in this group. Clear? So हम देखते हैं जैसे जैसे शेल ऐड होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यहाँ पे शेल बढ़ रहे हैं, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेम रह रहे हैं. ऊपर से नीचे इन ए ग्रुप व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम. ओके, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम 2 1, सो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में, सोडियम 2 8 और फिर से 1, सो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है. पोटेशियम में 2 8 8 1. तो इस तरह से लास्ट में जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहेगा और इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग नहीं है. तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इन ए पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंग, बट इन ए ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिमेनिंग सेम. There is no change. Now coming to the valency, this is the very important part of this video. Here you see the valency varying from left to right. Okay, but in up to down in a group it's not changing anything. क्यों नहीं चेंज हो रही है? अप टू डाउन पहले हम ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं. तो हमने देखा ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो सेम है. अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इट मींस उस एलिमेंट की वैलेंसी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. जो एलिमेंट उस ग्रुप में है उन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या रहनी है? सेम ही रहेगी. ठीक है, अब बात करते हैं हम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड. तो लेफ्ट टू राइट पीरियड द वैलेंसी वेरीज. फर्स्ट इट इंक्रीजेस एंड देन इट डिक्रीजेस. सो वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 2 3 4 and then it's decreasing 3 2 1 and 0. So zero valency cell is the 18th group, that is called noble gases group, and there is no changing in that group. Okay, so no, उसकी कोई वैलेंसी नहीं होती है. But when you moving from left to right, valency is first increasing and then decreasing. इसको आप समझें. इसके बाद आते हैं हमारे मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में. अगर हम डिस्कस करें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था कि लेफ्ट साइड में वी हैव द एलिमेंट्स दैट आर मेटल्स एंड राइट साइड में हम देख रहे हैं जो मेटल्स हैं वो नहीं है, बाकी जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल्स है. इट मीन्स व्हाट? इन ए पीरियड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, देन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज डिक्रीजिंग. ओके, इसको आप एक और ट्रिक के साथ भी समझ सकते हैं. तो मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, क्यों हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो रही है. आप देखिए वैलेंसी के साथ में इसको जोड़कर देखते हैं कि पहले वैलेंसी जैसे 1 2 3 4 है और उसके बाद वैलेंसी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, 0 तक पहुंच जाती है. इसलिए आप इस चीज को इस तरह से ध्यान रखें कि जैसे जैसे वैलेंसी कम होती जा रही है मेटेलिक प्रॉपर्टी भी कम होती चली जा रही है. अगर हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये इंक्रीज होती हैं. इसको लेटर M से हम डिनोट कर सकते हैं. M फॉर मेटल्स. तो मेटल में MdI. This is just the same as atomic number, atomic size. So AdI जैसे ही था. Now MdI. M for metal, metallic property. ग्रुप में पीरियड में डिक्रीज हो रही है, बट इन ए ग्रुप इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो इस लेटर से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं MdI. इसके बाद हम देखें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज. तो ये बहुत इजी हो गया. जब मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है. जब मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं. तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स. ठीक है, तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी को याद किया, चाहे आप कर लें मेटेलिक प्रॉपर्टी या फिर कर लें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी,
दोनों में से किसी भी एक प्रॉपर्टी को अगर आप याद कर लेते हैं तो दूसरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हमें याद रह जाएगी। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में देखिए, जो ट्रिक है यहां पर आप एन के साथ में इसको डिनोट कर सकते हैं। एन के साथ में हम कैसे देखेंगे, एन जो लेटर है तो यहां पर आएगा NID, वहां था MDI, लेकिन यहां NID। M से जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए आप D और I को, जहां D रखा था M में वहां पर I रखेंगे, और जहां I रखा था वहां पर हम D को रख देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा NID। ठीक है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज में। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो डिक्रीज इंक्रीज होती है नॉन मेटेलिक, क्योंकि मेटल्स इधर है, नॉन मेटल्स इधर है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होंगी। और जब अप टू डाउन किसी ग्रुप में अब हम नीचे आते हैं तो D4 डिक्रीज होती है। तो ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज किसी ग्रुप में डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जिसके बारे में हमने देखा। इसके साथ देखिए अब एक बार शॉर्ट में इसको और समझ लीजिए। मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड की बात अगर हम करें तो एक पीरियड में मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिक्रीज होती हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो। और अगर एक ग्रुप की अगर हम बात करें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी ग्रुप में इंक्रीज होती है। इन अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी एक ग्रुप में हमेशा ही क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। और अगर हम पीरियड में हम बात करें तो इंक्रीज हो रही है, और ग्रुप की अगर हम बात करें तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ग्रुप में जो है डिक्रीज हो रही है। NID तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। MDI ओके, और निड में NID, इस तरह से आप इनको, ये एक अलग टाइप की नॉर्मल ट्रिक है, इसे एग्जाम के लिए आप यूज नहीं करते, बट याद रखने के लिए इसे आप काम में ले सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एटॉमिक साइज के बारे में अगर हम बात करें तो एटॉमिक साइज ऑफ एटम अगर हम पीरियड में बात करें, लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में बात करें तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, इसके लिए हमने लेटर ए बनाया था, ए लेटर हमने बनाया था, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे डिक्रीज होगा, और अगर अप टू डाउन आते हैं तो ये इंक्रीज होता है। तो हमारी जो ट्रिक बनी थी ABI बनी थी। उसके बाद हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक पीरियड में इंक्रीज होते हैं और एक ग्रुप में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। ओके, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आता। अब बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी जो है लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियड में फर्स्ट इंक्रीज होती है 1 2 3 4 एंड देन डिक्रीज होती है 3 2 1 एंड 0। ये एक ग्रुप की पीरियड की बात हो गई, पीरियड में इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। और अगर ग्रुप की बात हम करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने में वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आता। जिस प्रकार से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चेंज नहीं आता वैसे ही वैलेंसी में भी कोई चेंज नहीं आता। इसके बाद बचती हैं हमारे पास मेटल प्रॉपर्टीज। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो हमारा लेटर जो बन रहा है M, और इसको हमने कैसे लिखा था D और I, MD I के लेटर से हमने लिखा। मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने में, और अप टू डाउन जाने में इंक्रीज होती है। लास्ट में बचती है हमारे पास नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जस्ट रिवर्स ऑफ मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपने मेटेलिक प्रॉपर्टीज को याद किया है अच्छे से तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इजीली आप लिख सकते हैं। और इसके लिए लेटर हम डिनोट कर रहे हैं N, लेफ्ट टू राइट जाएंगे यहां पे आएगा I, और अप टू डाउन अगर आप नीचे आते हैं तो आप यहां पर लिखेंगे D, NID। ठीक है, सो ये थे हमारे ट्रेंड्स इन दिस चैप्टर नंबर 5, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो मेन ट्रेंड्स थे, मतलब मेन टोटल ट्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं।
आपको अगर अभी भी कहीं कोई डाउट, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू।